Hello students, in the previous lecture we have been talking about the pituitary gland, and I did mention that pituitary gland is divided into two parts, that is the adenohypophysis and the neurohypophysis. And we did talk about what does it secrete. So we did talk about the trophic hormones. ठीक है, previous lecture में trophic hormones की मैंने बात करी थी कि जो trophic hormones होते हैं इनका काम क्या है? द ट्रॉपिक हॉर्मोन्स दे स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स. ठीक है, और इसकी कैटेगरी में मैंने हार्मोन्स लिखे थे. टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, देन देयर इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन देयर इज luteinizing hormone, and there is ACTH, adrenocorticotropic hormone. So these hormones, they come under the category of trophic hormones because they deal with the stimulation of other glands. They make other glands to release the hormones. The other category of hormones that are produced by the pituitary gland are the non-trophic hormones. Are the non-trophic hormones. Now non-trophic hormones की अगर बात करें, they help to increase protein synthesis. इनका main function क्या है? They increase protein synthesis. They increase protein synthesis. ठीक है? Now so let's talk about the first non-trophic hormone, that is GH, which is the growth hormone. Which is the growth hormone. ठीक है? So what does GH do? तो ये जो growth hormone है, it does not directly organ the target. ठीक है? ये सीधा टारगेट को ऑर्गन नहीं करता है, ऑर्गन द टारगेट नहीं, टारगेट द ऑर्गन. ओके, ऑब्वियसली नाम यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, तो मतलब इट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, दे स्टिमुलेट liver cell to secrete somatomedins. These are proteins ठीक है. Stimulates liver cell to secrete somatomedins, and the somatomedins they bind to the target cell. Medins binds to target cell and promote growth. ठीक है, मतलब द ग्रोथ हार्मोन इज नॉट डायरेक्टली और वर्किंग ऑन दी टारगेट सेल. वो लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है, और लीवर के स्टिमुलेशन से लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है, और लीवर जब स्टिमुलेट हो रहा है तो वहां पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे कहा जाता है सोमैटोमेडिन्स. और ये सोमैटोमेडिन्स then they are stimulating, or then they are binding to the target cell, and this is leading to the growth. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो growth hormone that is secreted by the pituitary gland, it is not directly acting on the target. Okay, it uses the liver cells to secrete somatomedins first, and the somatomedins then bind to the target cell, and then the growth occurs. Done? Okay, now so apart from this और क्या करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स? So they increase blood glucose. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, they increase blood glucose level. अब ना ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ाना है? क्योंकि यहां पे अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? ग्रोथ की बात कर रहे हैं. और जब आप ग्रोथ की बात करते हो, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी.
तो अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स द ब्लड शुड बी हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, so the cells can take up those glucose and perform aerobic respiration and produce energy. ठीक है, so अगर there's going to be enough amount of blood glucose, then only the growth can take place, है ना. बिना ग्लूकोज के तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो पहला काम जो ग्रोथ हार्मोन्स करेंगे, दे वुड इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. So the glucose is available for various processes related to growth. So that glucose is available for various process related to growth. So that glucose is available for various processes related to ग्रोथ. ठीक है, तो यहां पे एक चीज काफी क्लियर है कि अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है बट सोमैटोमेडिन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, द लीवर इज समवॉट डिफेक्टिव एंड इट्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस सोमैटोमेडिन्स, तो होगा क्या? इनफैक्ट हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स विदाउट सोमैटोमेडिन्स, द ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू अकर्स. ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है. तो यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं, एक पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का. इट्स अफ्रीकन पॉपुलेशन, दैट इज अफ्रीकन पिग्मीज. ये एक पॉपुलेशन है ह्यूमन. अफ्रीकन पिग्मीज की अगर बात करते हैं तो इस पॉपुलेशन में ग्रोथ हार्मोन तो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बट सोमैटोमेडिन्स प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बट सोमैटोमेडिन्स आर एब्सेंट. सोमैटोमेडिन्स क्या है? एब्सेंट है. तो ग्रोथ हार्मोन अकेला काम नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं दिखा सकता, उसको सोमैटोमेडिन्स भी चाहिए. तो जो अफ्रीकन पिग्मीज पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, कोई एनिमल नहीं है, पिग नहीं है. ओके, तो इनके केस में क्या है? देयर इज ग्रोथ हार्मोन इन अबंडेंस बट सोमैटोमेडिन्स एब्सेंट है, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. उनकी नॉर्मल हाइट, जैसे बाकी अफ्रीकन पॉपुलेशन में जो हाइट है उससे काफी कम हाइट आपको इस पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी. ठीक है, चले आगे. सो लेट्स मूव अहेड. सो नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स की बातें चल रही है. नाउ अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला कि यार सोमैटोमेडिन सिक्रीट नहीं हो रहे, ग्रोथ हार्मोन तो सिक्रीट हो रहा है, बट अगर ग्रोथ हार्मोन ही सिक्रीट नहीं हो रहा है तो इट लीड्स टू अ कंडीशन जहां पे बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, बॉडी की साइज काफी छोटी रह जाती है, एंड वी टर्म दैट कंडीशन एज ड्वार्फिज्म. लो secretion of GH. The condition is known as hyposecretion. The condition is known as hyposecretion. ठीक है, and hyposecretion leads to what? It leads to dwarfism. It leads to dwarfism. That means the growth is not taking place. ये जो dwarf लोग हो गए, इनकी जैसे हिंदी में बोलते हैं बोने, they are termed as बोने, short heighted people. So that is due to there is low secretion of growth hormones या फिर no secretion of growth hormone, leading to a condition known as hyposecretion, which causes dwarfism. ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी में काफी ज्यादा अवेलेबल, तो क्या हो सकता है? तो दो कंडीशंस है.
we have two conditions, that is if there is high amount of GH, so condition is known as hypersecretion. क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रीशन बोलेंगे. एंड हाइपर सिक्रीशन में दो पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. अगर अर्ली चाइल्डहुड में ही देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस इन द बॉडी, अर्ली चाइल्डहुड मतलब डेवलपमेंटल स्टेज हो गया ना, जब बॉडी का डेवलपमेंट चल रहा है, अगर उसी टाइम पे देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी दैट इज वेरी टॉल, एंड वी टर्म दैट कंडीशन एज gigantism. We term that condition as so that is extreme tall height. Extreme tall height, that is gigantism. Then if you talk about if the secretion or the production of growth hormones increases after childhood, means the person has turned out to be an adult age के बाद अगर growth hormone का production बढ़ता है, अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सो अब यहाँ पे ग्रोथ तो ऑलमोस्ट हो चुकी है ना, आप अडल्ट हो चुके हो, ग्रोथ हो चुकी है, अब क्या होगा? क्योंकि ग्रोथ के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? एपिफाइसल प्लेट्स. नाउ व्हाट इज दिस एपिफाइसल प्लेट्स? Epiphyseal plates located in bone. Epiphyseal plates located in bone helps in the growth. अब यहां पे तो क्या हो चुका है कि जो एपिफाइसल प्लेट्स है, ओके, वो क्या हो चुकी है? ग्रोथ उससे दिखा दी है. ठीक है, तो अब क्या होगा? तो एक्सट्रीमिटीज जो है बोन की वो इंक्रीज करेगी साइज में. ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो एपिफाइसल प्लेट्स है जो बोन्स में लोकेटेड है, ओके, वो क्या करेंगे? वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बट व्हेन यू कम इन द एडल्ट स्टेज, जो प्लेट्स है उन्हें ग्रोथ दिखा चुके हैं, तो अभी वो और ग्रो नहीं कर सकते. तो अब क्या होगा? जो बोन्स की सॉरी जो एक्सट्रीमिटीज होती है, दे वुड इंक्रीज इन साइज. सो अडल्ट में जो कंडीशन क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज एक्रोमेगेली. कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगेली. और एक्रोमेगेली की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है क्या? एक्सट्रीमिटीज इंक्रीज इन साइज. एक्सट्रीमिटीज इंक्रीज इन साइज. जैसे कि एक कंडीशन होता है जहां पे देयर इज
जो जबड़ा होता है जॉ, दैट इंक्रीजेज इन साइज। पूरी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज में ग्रोथ होगी। तो यहां लिखेंगे अपन प्रोट्रूजन ऑफ जॉ। Protrusion of jaw, which is termed as prognathus. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? It's termed as prognathus. It's known as prognathus. That is protrusion of jaw. Then there is another thing, kyphosis. एक और कंडीशन होती है, kyphosis बोलते हैं। काइफोसिस, इसमें क्या होता है? देयर इज हंच बैक, है ना, जो बैक होती है वो स्वेल हो जाती है। इट इज नोन एज हंच बैक, ठीक है। और जो ओरल अपीयरेंस होता है दैट इज लाइक गोरिल्ला, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, अपार्ट फ्रॉम प्रोग्नाथिस एंड हंचबैक, देयर इज आल्सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, दैट इज नोन एज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। यहां लिख रहा हूं मैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, दैट इज गायनेकोमास्टिया, ठीक है। सो अर्ली चाइल्डहुड में अगर सिक्रीशन होता है तो इट लीड्स टू गैगेंटिज्म, और अगर अडल्टहुड में सिक्रीशन होता है तो इट लीड्स टू प्रोट्रूजन ऑफ जो, हंचबैक and development of breast in male, and the appearance would look like a gorilla, ठीक है। Done. So let's move ahead. So this was all about the growth hormone, which is a part of the non-trophic hormones. अब एक और हार्मोन देखते हैं, that is the prolactin. Okay, so let's talk about another hormone, that is prolactin. Which is also written as PRL, ठीक है। अब क्या काम करता है ये? तो it stimulates the mammary gland to secrete milk. Stimulates mammary gland to secrete milk. और इसके एक्टिवेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? तो इट रिक्वायर्स प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH, दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा? इट एक्टिवेट्स the pituitary gland to produce or to release prolactin, and there is prolactin inhibiting hormone, that is PIH. It inhibits the release of prolactin. ठीक है, और यहां क्या लिखे? एक्टिवेट्स द रिलीज ऑफ, ठीक है। सो वी हैव द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। करता क्या प्रोलैक्टिन? तो स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रेट मिल्क।
कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है. सो बट ऑब्वियसली मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड. सो ये हार्मोन का प्रोडक्शन कब होगा? आफ्टर द डिलीवरी. ठीक है. नाउ there is one more non-trophic hormone, that is MSH, melanocyte stimulating hormones. We have melanocyte stimulating hormone. That is the melanocyte stimulating hormone, which are written as MSH. क्या काम करते हैं? So it is secreted by pars media under the stimulus of it is secreted by pars media under the influence of melanocyte releasing hormone, है ना? RH is releasing hormone, IH is inhibiting hormone. So under the influence of MRH, that is the melanocyte releasing hormone. Obviously ये कौन release करेगा? So this is going to be released by whom? By the hypothalamus. और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेलानोसाइट? MSH stimulates production of melanin by जो सेल्स है by melanocyte. MSH stimulates the production of melanin by melanocyte. ठीक है. अब ये melanocyte करता क्या? What is the use of melanocyte? तो मेलानोसाइट तो सिक्रीट कर रहा है किसको? मेलानिन को. और ये मेलानिन किस काम में आता है? तो आई हैव टू रब दिस डाउन. मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू गो आउट इन द सन. और ये आपकी स्किन को डार्क टोन देता है. आपको पता होगा, आप टैनिंग की बात करते हो, तो जब अगर आप धूप में घूमोगे ज्यादा तो आपकी स्किन क्या होती है? टैन हो जाती है. टैन क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है. और मेलानिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज इट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. मेलानिन बाय मेलानोसाइट. ओके, मेलानिन क्या करता है? तो मेलानिन इज यूजफुल in absorption of harmful radiation and protects us from skin cancer. ठीक है. So, जो मेलानिन प्रोटीन है ये पिगमेंटेशन तो दे ही रहा है, बट पिगमेंटेशन के अलावा भी क्या कर रहा है? इट इज यूजफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्किन कैंसर. स्किन कैंसर से बचाता है ना? तो अगर मेलानिन, एक काम तो क्या है? इट गिव्स डार्क पिगमेंटेशन, स्किन डार्क हो जाती है ना? और उसके अलावा it also helps in absorption of harmful radiation. जिनकी स्किन काफी क्लियर होती है ना, जैसे कि आप बात करो, इफ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक अमेरिकन्स की आप बात करते हो, ओके, तो दे हैव वेरी फेयर स्किन, तो दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर.
बिकॉज मेलानिन का प्रोडक्शन उनकी बॉडी में कम है. Okay, so these were the categories of non-trophic hormones of the pituitary gland. Okay, so now let's move ahead and talk about another hormone that is the thyroid. I'm sorry, another hormone, another gland, that is the thyroid gland. So we have talked about the thalamus, I'm sorry, hypothalamus, then the pituitary gland, and now we are talking about the thyroid gland. So it is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. ठीक है, located over trachea. Located over trachea. Largest endocrine glands located over trachea, and they are butterfly shaped glands. They are butterfly shaped glands. So largest endocrine glands located over trachea, butterfly shaped glands. Diagram देखें. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बटरफ्लाई बट बटरफ्लाई शेप्ड आप बोल सकते हो. सो ये क्या, दिस आर द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. Lobe of thyroid gland, and what is this? This is the connection which is connecting the two lobes, and it is known as isthmus. क्या बोलते हैं इसे? Isthmus. It's a bridge or a connection between the lobes of thyroid gland. ठीक है, अगर इसका अपन सेक्शन लेके देखते हैं, I have to write this down. अगर इसका सेक्शन लेके देखते हैं तो what do we get? So that is the section of so section में what do I observe is, let's say this is a section. These are all the group of cells. अगर देखें, okay. So these are the cells which are available. और यहाँ बीच में there is going to be gelatinous substance or a matrix which is the colloid. जो मैंने ब्लू दिखा रखे ये cells है. And we're talking about the section of the thyroid gland.
These are all the lobes. Okay, सब सेल्स में दिखा रहा हूँ. और यहाँ पे भी there going to be presence of some amount of cells. These are termed as parafollicular cells. These are going to be termed as parafollicular cells. So let's leave it down. This is the section of a thyroid gland. तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, that is what? That is a follicle. ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, पूरा गोल बंच जो दिखा रखा है, that is the follicle. ठीक है. और इसके अंदर जो सेल्स मैंने दिखा रखे हैं, दिस आर द क्यूबॉइडल सेल्स. दिस आर the cells are cuboidal epithelium. They are cuboidal epithelium. ठीक है. और यहां पे जो सेल्स अवेलेबल है, those are known as parafollicular cells. Follicular cells. ठीक है. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, फॉलिकल्स हो गया. अच्छा, जो फॉलिकल्स है पूरा जो अपना सर्कल दिखा रखा है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस कर रहा है T3 एंड T4. इट प्रोड्यूसेस और secretes T3 और T4. T3 is triiodothyronine and T4 is tetraiodothyronine, या फिर आप थायरॉक्सिन भी बोलते हो. और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स अवेलेबल यहाँ पे, दे सिक्रीट TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन. दे सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन. ठीक है. इज इट क्लियर? सो दिस इज द सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. नाउ okay, now T3, that is triiodothyronine. Triiodothyronine. And T4 is tetraiodothyronine. या फिर जो जनरल टर्म अपन बोलते हैं थायरॉक्सिन. ठीक है, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं. T3, T4 और TCT मैंने लिख दिया थायरोकैल्सिटोनिन. सो दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल्स एंड द थायरोकैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल्स. नाउ ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, क्या लिखेंगे? Both the hormones are amine and formed by iodization of tyrosine. Both hormones are amine and formed by iodination of tyrosine. ठीक है. अब आपको पता ही होगा कि अगर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा. पहले तो मैं इसको रब करता हूं इतने सेक्शन को. हाइपोथैलेमस से सिग्नलिंग होना चाहिए फर्स्ट. तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस
So signal आएगा that is in the form of TRH, that is thyroid releasing hormone. किसके पास जाएगा ये? It would go to the pituitary gland. और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? सो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर TSH. और ये TSH क्या करेगा? सो ये TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. Stimulates thyroid gland to produce T3 and T4. Stimulates thyroid gland to produce T3 and T4. ठीक है. So once T3 and T4 are being produced, they are going to send a negative feedback. They are going to send a negative feedback. क्योंकि प्रोडक्शन अगर चालू हो गया है तो एक पॉइंट पे तो उसको बंद करवाना पड़ेगा, नहीं तो स्टिमुलेशन चलता रहेगा तो T3 T4 का नंबर बढ़ता जाएगा. सो दैट स्टिमुलेशन हैज टू स्टॉप. और स्टिमुलेशन कब स्टॉप होगा? जब T3 और T4 का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा. तो T3 and T4 are going to send a negative signal. They're going to send a negative signal to TRH. इसको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा और इसको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा. तो ये दोनों क्या करेंगे? ये यहां से प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और ये यहां से प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टिमुलेशन हो रहा था थायराइड ग्लैंड का वो भी बंद हो जाएगा एंड T3 और T4 का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा. ठीक है. तो इनिशियली TRH और TSH क्या कर रहे थे? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके T3 और T4 का प्रोडक्शन करवा रहे थे. बट जब T3 एंड T4 का प्रोडक्शन चालू हो जाता है एंड यू डोंट नीड मोर ऑफ इट, तो यही चीज T3 एंड T4 क्या करते हैं? ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं TSH को एंड TRH को, जिसकी वजह से TRH और TSH का प्रोडक्शन बंद हो जाता है. और जैसे ही प्रोडक्शन बंद होगा तो जो स्टिमुलेशन हो रहा था थायराइड ग्लैंड का वो भी बंद हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? मैं यहां पे लिख देता हूं. दिस इज नेगेटिव फीडबैक. Feedback stops stimulation of थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन रोक देता है. Okay, so now let's talk about the function about the T3 and T4. Okay, अगर फंक्शन देखें T3 एंड T4 का, फंक्शन ऑफ T3 and T4. So they perform a very important function, that is regulation of basic metabolism rate. Basic metabolism rate, which is known as BMR. Okay, function of T3 and T4, its regulation of BMR, that is basic metabolism rate. Done. Now it's a calorogenic hormone.
because it produces a lot of heat. जो hormones है, they are calorigenic hormones. These are calorigenic hormone because they stimulate production of heat actually. Why calorigenic? Because they stimulate production of heat. They stimulate production of heat. And they are very important for physical and mental growth. They are very important for physical and mental growth. अगर T3 और T4 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, if the mother is pregnant और उस टाइम पे T3 and T4 are not produced by the mother, this would cause a problem with the development of the baby as well. So very important for physical and mental growth. They are required for normal menstrual cycle. Required for normal menstrual cycle. ठीक है? And also very important, for metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस की बात करें, दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द ऑर्गेनिज्म. आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में कि जो टेडपोल होता है, द टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉग. जो टेडपोल के पास टेल है, गिल्स है, वो चले जाते हैं और किसका डेवलपमेंट होता है? फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है. सो दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज. सो उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टडी की गई है कि अगर आप टेडपोल की बॉडी में से थायराइड ग्लैंड को अगर हटा दो, निकाल दो, ठीक है, तो टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा. मतलब टेडपोल फ्रॉग में डेवलप नहीं हो पाएगा. टेडपोल किस में डेवलप होता है? फ्रॉग में डेवलप होता है. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस करता है और फ्रॉग में डेवलप होता है. सो इफ thyroid gland is removed from tadpole, metamorphosis does not occur. This is very important. याद रखना है कि अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं फ्रॉम दी टेडपोल, तो टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. मेटामॉर्फोसिस उसका फ्रॉग में नहीं हो पाएगा. तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ T3 and T4. नाउ लेट्स से इफ देयर इज lower secretion of T3 and T4, lower secretion that can be termed as hyposecretion. Okay, so let's say there is hyposecretion of T3 and T4. Hyposecretion of T3 and T4, lower secretion बोल सकते हैं. So it leads to a condition known as cretinism.
In children, it causes a condition known as cretinism. In children, it causes a condition known as cretinism. Now, what are the characteristics or the symptoms of cretinism? So that leads to this is causing low IQ. IQ level काफी कम होगा बच्चों का. Then they're going to be physically and mentally retarded. They're going to be physically and mentally retarded. They would have protruded belly. पेट काफी बाहर होगा बच्चों में, that is protruded belly. जो टंग होगी that is going to be very thick. So thick tongue, and the kid can be deaf and mute. Deaf mutism आप बोल सकते हो. ठीक है. So cretinism is a condition which is found in children which suffer from hyposecretion of T3 and T4. ठीक है. cretinism के क्या क्या फीचर्स हैं? तो लो IQ, फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड. फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड. जो पेट होगा, बेली होगी, वो काफी ज्यादा प्रोट्रूडेड होगी. टंग इज गोइंग टू बी वेरी थिक एंड डेफ, मतलब सुन नहीं सकते और बोल नहीं पाएंगे. ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी क्रेटिनिज्म. यही चीज अगर अडल्ट में देखते हैं तो अडल्ट में क्या होगा? रब दिस डाउन. In adults, it causes a condition known as myxedema. Myxedema. In adult, it causes a condition known as myxedema. ठीक है. Now what is myxedema? So that is, there is deposition of fat below the skin. Deposition of fat below skin, which gives overall puffy appearance. Which gives overall puffy appearance. ठीक है. बॉडी फुली भी दिखेगी. सो दैट इज myxedema. और क्या क्या है? तो दूसरी जो चीज आपको देखने को मिलेगी दैट इज इन द एडल्ट्स, दैट इज लो BMR. बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो काफी कम हो जाएगा. पर्सन gains weight. It can be put under the category of obesity. फिर लेजीनेस काफी रहेगी बॉडी में, that is lethargy. In females, there would be failure to conceive a baby. बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी फीमेल. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स
जो आपको हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 की वजह से देखने को मिलेंगे. नाउ इन दिस केस द एडल्ट्स कैन कंज्यूम thyroxine tablets okay to overcome the condition. Adults can consume thyroxine tablet to overcome these conditions, ठीक है, और to overcome hyposecretion of T3 and T4. Done? Okay. Now so I'll keep this much for this session. In the next lecture we'll continue with the secretions of thyroid gland. So I hope go through the lecture properly. Still, if you are confused with any of the topic, do let me know. Okay, so we'll keep this much for the session. Thank you so much.